Recording this. So first of all, welcome everybody and welcome Divakar, our guest today. And firstly, it's my privilege to have you, Divakar, in my session because none other than him, I guess, actually would be the perfect choice to answer all your questions who are actually having doubts regarding MTech, PhD, higher studies, and especially those people who are from from other fields also they can also matlab, other than civil and environment they can also ask your questions regarding higher studies, MTech, PhD. What will be your options? By the way, let me introduce before you people that Divakar is a PhD scholar currently from IIT Bombay. He has also done his MTech from IIT Bombay, environmental engineering, and he's not only just a PhD scholar, he's a PMRF scholar. That is Prime Minister's Research Fellowship scholar actually, which is definitely a very prestigious thing for any PhD holder. So I'm very glad to have you, Divak. Welcome. Thank So, you, Anirudh, for inviting me again. yes. So, जो स्टूडेंट्स का जो सवाल है, सबसे पहले I would like all of you people to ask your questions to Divakar. The questions mainly which I have actually, जो मेरे पास बहुत सारे questions आए थे, क्योंकि different people will be called actually over here who are from different fields. जैसे Divakar is here actually to answer you mainly regarding the questions regarding your higher studies, what will be the options, especially many people are here from civil engineering field who are doing their MTech say in environmental engineering field and stuff. So he's a guy from IIT Bombay environmental engineering. तो obvious बात है MTech के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी स्कोप ये सब मिल सकता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क. तो एक तो जनरल सवाल है. दिवाकर, also on behalf of all the students I want to ask you, Divakar, that what are actually the options that students are going to get? Because many times I have seen that people are having this issue that अरे सिविल के बाद एनवायरनमेंट लेके क्या ही मिलता है. ठीक है, एक ऐसे होता है एक्चुअली दिमाग में. तो आप थोड़ा मुझे ये चीज बताना सबसे पहले दैट व्हाट आर द इमीडिएट ऑप्शंस आफ्टर एमटेक. क्या क्या अभी करंटली मार्केट में ऑप्शंस है एनवायरनमेंट फील्ड में एंड ऑल दिस. Okay. So, Anirudh, I will come to your question. So, after doing MTech, especially in environmental engineering, so first option is that they can go for direct placements. अच्छा, regarding placements The also I want campus to ask you, placements. Divakar. So sorry to interrupt you, Divakar. That is, you regarding Yes. placements also students are having different kinds of queries कि environmental engineering में IIT में Okay. किस टाइप का placement होता है, किस टाइप के जॉब में जाते हैं लोग. Okay. तो ये अगर आप बता दे थोड़ा. Okay. Okay, so generally nowadays students are choosing the current field, which is generally related to life cycle assessment, environmental audit, this ESG reporting, where these opportunities are high nowadays. So conventional jobs are also there in the field of water and wastewater treatment. But here in IIT Bombay, thing is that if you are preparing yourself, so you can go to in any field like in data analysis or even in the software engineering field. That means the non-core sector also what you are saying. Non-code sector. It's Yeah. different. It's entirely depending upon how any candidate is preparing. Hmm. So one more question I'm having, Divakar, that how long actually does this particular preparation going to take? That is, for example, लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं जा रहा हूँ IIT बॉम्बे में, क्या मुझे नॉन कोर की तैयारी करने का टाइम मिलेगा? हम्म, हम्म, हम्म। सो तो एक सबसे अच्छा अनिरुद्ध एग्जाम्पल रहेगा, मैं अपने बैचमेट से ही स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग कितने हाँ, लोग थे, ताकि लोग को हाँ, डाइवर्सिटी समझ में आए, कैसे कैसे हाँ, लोग मतलब प्लेस्ड हुए हैं, कैसे क्या है. यस, तो हमारे यस, बैच में एग्जैक्टली याद होगा तो 16 लोग थे. 16 लोग थे, यस. हाँ, तो पहले से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें से दो लोगों ने मतलब पहले से ही गवर्नमेंट का एग्जाम दे रखा था तो उनकी गवर्नमेंट हाँ, जॉब लगी. एक गवर्नमेंट स्टेट जॉब लगी. एक मतलब ठीक है, तो पहले से. फिर दूसरी चीज आते हैं कि नॉन कोर पे. हम्म. Out of I think 16 people, I think in our batch 4 people got this non-core job.
in data Non-core job, analysis field or software engineering field. software I am engineering. talking about our batchmates. Yes, and also they were very high Yes, packages, right? मतलब बहुत yes, handsome yes, yes, अच्छा sir. पैकेज लेके, हाँ. Yes, yes, sir. Oh, Hmm. so at least we can say कि our one batchmate is also placed in Japan. Yes, his current package is over 40 Yes, lakh sir. actually, 40 LP, but he got placed in हाँ, 32 yes. LP. His So current 4 package is people over in 40 LP. like 4 to Yeah. 5 people. And now 4 people got placed in core sector, 2 in Course. Reliance Industry and 2 in this LCA and all those things. Yeah. And out of them 2, me and my one more batchmate, we are Yeah. pursuing PhD from IIT Bombay. PhD So from you can IIT see Bombay. the diversity here. Yes. So yes, obviously, taking a cue of what Divakar had told you right now, that after environmental engineering, also there are so many other sectors where you can join. That's the main thing that he wanted to say. That it's not only okay, fine, कि आप environmental engineering करके environmental engineering में जाना ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है. अगर आप चाहो तो आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी बॉम्बे. इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ आईआईटी बॉम्बे में होता है. Yes, yes, sir. The top IITs, actually, Yes. most of the top IITs, you are going to get this kind of option. Yes, sir. Right. Other thing I want to ask you actually regarding that many people, they are afraid of this PhD thing. मतलब many people I have seen, they do not Okay. consider PhD at all as their option. मतलब PhD ये करे क्या हुआ? Okay. हायर स्टडीज मतलब ये तो मतलब. So that तो is true. That is true, Anirudh. So I will give हाँ. my example. When I have joined here as a MTech candidate, I do not have any idea about PhD. Yeah, I know it. Yeah. So yes, yes. So after doing my MTech research and when I used to come here in lab, so lab में बाकी लोगों से पता चला कि मतलब क्या प्रोसेस है, क्या बेनिफिट्स है. तो इसमें किसी जो अगर बाहर एमटेक नहीं कर रहा है उसको ठीक है, वो जरूरी है, वो डरेगा. लेकिन एक बार जब एमटेक करेगा, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग एमटेक उनको पता चल जाएगा कि क्या प्रो एंड कॉन्स है पीएचडी के. तो उस पर डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन एक बोलूंगा कि पीएचडी मतलब अगर आप मोर इंटरेस्टेड इन रिसर्च फील्ड, सो यू कैन गो फॉर पीएचडी. Yes. One more और thing. इंडिया में अभी ऑप्शंस की बात करें, हाँ यस, हाँ, प्लीज अगर प्लीज प्लीज. इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा तो अगर पता ना हो तो एमएचआरडी जो नॉर्मल पीएचडी का स्टाइपेंड है वो भी 42,000 है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 5 ईयर. और आपको पता होगा मैं पीएमआरएफ कैंडिडेट हूँ, सबको पता चल जाएगा. तो उसके वो सर्च कर सकते हैं क्या है उसकी फैसिलिटीज और उसमें क्या स्टाइपेंड है. अभी जो पीएमआरएफ 2.0 लॉन्च हुआ है अभी नेक्स्ट ईयर से, उसमें स्टाइपेंड और बढ़ गया है और फैसिलिटीज भी ऐड हो गई हैं, मतलब रिसर्च ग्रांट, ये सब चीजें. तो एक्चुअली पीएमआरएफ के लिए जितना मुझे पता, आई थिंक इट्स 85,000 इज द हायर लिमिट, राइट? अभी तक तो वही था. No, currently it is 80, or I think in coming year it's 1 lakh in PMRF 2.0. 1 lakh रुपीस पर मंथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? मतलब मेरी सैलरी नहीं है इतना. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसरों के बता रहा हूँ, मेरी मतलब सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है पर मंथ. आप इनको 1 लाख रुपए पर मंथ इन हैंड मिलता है पीएचडी करने के लिए सिर्फ. मतलब यू आर गोइंग टू गेट दिस, बट ऑब्वियसली देयर इज अ रिगरस प्रोसेस. ऐसे नहीं कि सबको उठा उठा के 1 लाख रुपए पर मंथ हाँ, देंगे. yes, yes, Yeah. So yes, can yes. I just know मतलब that but I process will actually, guarantee Divakar? if you will. Okay, so I will guarantee you if you will do means little bit of hard work in your MTech project. So it's also depends upon your supervisor how he is writing a means what I can say, a recommendation letter for you. So that matters a lot during that your MS. So you have to decide when you are joining na, in first semester itself you can decide कि either you have study, either you are going to either you are going. So in our most of the students have already decided. Whoever like you have started teaching from our MTech itself. The people who want to join means private company, they start preparing. So it's you have to choose in the first semester itself and accordingly you can prepare. Yes, yes. So those people actually जो आप एक जस्ट मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज देखिए अलग अलग सेशंस होगा ये पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सेशन में. Some people from the core job will be called, some people from the non-core job will be called. So Yes. this person is the best person Yes, sir. who can guide you regarding PhD. तो मैं इसीलिए एक्चुअली एक Yes, yes. स्कॉलर I को मैं ऐसे बुला चुका हूँ यहाँ पे. तो आप एक चीज समझ सकते हैं
कि अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो यू कैन गेट 1 लाख रुपीज पर मंथ एंड अलोंग विथ सम अदर बेनिफिट। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि 1 लाख रुपए में सब कुछ बेनिफिट कवर है। 1 लाख रुपए सिवाय सिवाय आपको और भी बेनिफिट्स मिलने वाला है। इट्स जस्ट लाइक अ सुपीरियर गवर्नमेंट जॉब, राइट? सुपीरियर क्वालिटी गवर्नमेंट जॉब, नॉट लाइक मतलब आप एक एई होके भी इतना नहीं कमाते हो। मैं एक सीआईएल ऑफिसर होके पहले 1 साल में इतना नहीं कमा चुका। वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग माय ग्रॉस सैलरी इज लाइक 1 लाख रुपीज, बट माय इन हैंड सैलरी इज लेस देन 1 लाख रुपीज ऑब्वियसली। सो दिस इज द स्टोरी एक्चुअली। बट आप समझ सकते हो एक चीज को कि पढ़ाई में कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट, कि आप कितना बढ़ावा दे रहे हैं Yes. कि हाँ आप आगे जाओ, रिसर्च करो, ताकि आपको इतना ज्यादा सुविधाएं दी जा रही। सो आई थिंक यू मस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, पीएमआरएस तो चलो छोड़ो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू गेट पीएमआरएफ बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज Yes, yes, अ yes. रिगरस, That हाँ, is a इट्स rigorous process, and you have to do hard work actually. हार्ड वर्क। और उसमें जितना मुझे याद है दिवाकर, दैट यू विल आल्सो फेस इंटरव्यूज फ्रॉम डिफरेंट हाँ, पैनल मेंबर्स। दे विल आल्सो, earlier, Anirudh, now this process is no. Now this process is relatively easy. अभी interviews नहीं होते हैं. We ओके have to write a proposal, and we have to ओके submit our proposal along with our CV and recommendation from our guide to department. So our department will forward that our means application to the means whoever is responsible IIT for the selection process. ओके ओके ओके, गॉट इट। Okay. But again, so it's even easier right now. So obviously, but even apart from that, I want to say one particular thing. Suppose the normal जो PhD कर रहे हैं, who are not PMRF scholars, Mhm. still they are Yes, getting yes, 42,000 rupees yes. per month. That is in hand, हाँ, and they are no, living first, in a, no, a हाँ scholarship, Anirudh, हाँ first means first 2 year, I think it is 35. After two हाँ years, it is 35, 42. 42, yes yes yes, but I'm Oh, okay. talking about the First, higher limit, yeah। okay, हाँ, तो 42,000 रुपीज okay, पर मंथ अगर yes. आपको मिल रहा है, आप एक चीज सोचो, अगर आप मुंबई Hmm. जैसे एक सिटी में हो, वहां पे आपको इन हैंड 42,000 Hmm. रुपीज मिल रहा है। आई हैव सीन मेनी पीपल एक्चुअली हु आर लीविंग पीएचडी फॉर अ से 60,000 रुपीज जॉब and in Mumbai, and 60,000 in hand salary, and just looking at the salary, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो अलग बात है, दैट्स अ Hmm. सेपरेट थिंग। बट आई हैव सीन मेनी पीपल, दे आर लिविंग देयर जॉब, Hmm. मतलब लिविंग देयर पीएचडी स्कोप, दे से ओके फाइन, आई एम अर्निंग 60,000 रुपीज पर मंथ, so I'm going for this job. If you are going for a private job of 60,000 rupees versus if you are doing PhD worth rupees 42,000 rupees per month, definitely from the financial perspective also you will be beneficial if you are doing PhD. Am I correct? Yes or no, Divakar? हाँ, yes, because here you are staying inside the campus, so जो भी Yes. तुम्हारी रहने और खाने के जो भी expenses है, वो बहुत कम है, और Medical facilities, medical is so also you free. can't get कितना the सारा facilities है, facilities. हाँ, इतने Everything सारे is free. Everything is free. everything is free, every single thing is free over there. तो फिर आप इतने सारे जो फैसिलिटीज है, मतलब इट्स जस्ट लाइक आई एम अगेन सेइंग यू, इट्स जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है ये। जैसे जैसे मान लो मैं कहीं पे बीमार होता, तो मेरे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे सब कुछ मुफ्त होता है। ये सब चीजें जो किसी के रिलेटिव है गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर वो जानते हैं ये चीजें। तो ऐसे ही एकदम सेम चीज यहाँ पे भी आपको मिलेगा, अलॉन्ग विथ यू आर गेटिंग स्टाइपेंड ओनली फॉर स्टडिंग, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आपको पैसे मिल रहा है और कुछ नहीं। So that's a very, very interesting thing, and I think many people should think about it. मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, हर एक सेशन में आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेगा। ये वन ऑफ द सेशन है, हो सकता है अगले सेशन में Hmm. आपको अलग ओपिनियन मिले, लेकिन जरूर अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। नेवर बी Yes, yes. लाइक हाइड बाउंड, Hmm. दैट ओके फाइन कि मेरे को यही करना है, बाकी कुछ भी नहीं है दुनिया में। ऐसे कभी मत रखिए, अपने ऑप्शंस को फ्लेक्सिबल रखिए। And also I want to know from Divakar one other things, that is your, for example, जैसे एनवायरनमेंट में अभी काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी आ रहा है, राइट दिवाकर? जैसे जिसमें एनवायरनमेंट में मास्टर्स की एक क्राइटेरिया मांग रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिवाकर, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? हेलो? हाँ, Aniruddha, okay, हाँ. Now you are audible. Yes, so I was talking about the government job opportunities through Yes. MTech in environment and all these things। ये अगर आप Hmm. Yes, हाँ yes. Yes. Hmm. हाँ
हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे कभी कभी कुछ कुछ पीएसयूज ने डायरेक्ट गेट के थ्रू हायरिंग की है, ओएनजीसी है शायद, मेरे हिसाब से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, कुछ ऐसे कुछ हाँ हायरिंग की है। और अभी आने वाला है, क्योंकि जहां तक मुझे अभी कुछ न्यूज पढ़ रहा था कि जो भी अपने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सारे अंडर स्टाफ्ड है, मोर देन मतलब 50%, मतलब कम लोग हैं। तो उनमें जैसे जैसे भी फील्ड में बढ़ रहा है अभी अपॉर्चुनिटीज, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बोलो, अभी तुम न्यूज पढ़ोगे तो कार्बन ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। अभी स्थिति ऐसे है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अपना कोई भी प्रोडक्ट मान लो एक मैं बात करता हूँ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यहाँ से ही टेक्सटाइल बाहर जाता है, फिर बड़े बड़े ब्रांड्स अपना लेबल लगा के बेचती है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके साथ उनको ये भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि उन्होंने कितना कार्बन मतलब इमिट किया, और उसकी रिगार्डिंग क्या पॉल्यूशन है। तो ये सब चीजें भी कंपलसरी हो रही है, तो उसके बिना वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब बता, प्राइवेट सेक्टर में भी ये सब में अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेंगी आने वाले 1-2 साल में, जो इंडिया में नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से भी जो अगर मैं इस हिसाब से वही बोलूं कि अगर आप एमटेक करना चाह रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग से आपने अगर बैचलर्स किया है, तो मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि अपना फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रखो, मतलब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। सही में बिकॉज ये मैं एक्चुअली बाकी कुछ लोगों को भी बोल रहा था एक्चुअली। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाके कुछ करो, हाँ, यस बट यस यस। बट मैं ये चीज देखा हूँ, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो जिनको एनवायरनमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, बट उनको हम्म कहीं से सिर्फ ये सुने हैं वो लोग कि हाँ जॉब सिर्फ स्ट्रक्चर में मिलता है। अगेन आई एम सेइंग हम्म। दिस स्ट्रक्चर, दिस फील्ड्स, ऑल फील्ड्स आर गुड फाइन, मैं किसी फील्ड को यस। बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप ग्रोथ को देखेंगे, स्ट्रक्चर यस जियोटेक ये दोनों फील्ड का जो ग्रोथ है इज अ वेरी स्टैग्नेंट, लाइक यस यस। लीनियर एंड स्टैग्नेंट। एनवायरनमेंट के बारे में इंडिया में इतना कुछ सोचे ही नहीं थे लोग पहले, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग लाइक राइट नाउ। अभी तक तो सोचे ही नहीं थे, सब चुपचाप बैठे थे। और अब कोई भी जो गवर्नमेंट जो सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर भी है, जैसे वहां पे भी अगर आप देखेंगे ना, जैसे ही वाज सेइंग अबाउट दिस कार्बन क्रेडिट थिंग, अब हाँ। देखना कोई भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जैसे मैं कोल इंडिया में हूँ, कोई एनटीपीसी में, जितने सारे जो मेजर पीएसयूज है सब देखना पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है सब। यस यस यस। आप आप थोड़ा गौर करके देखना, जितने सारे मेजर महारत्ना कंपनीज है पीएसयूज है सब के सब पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है। तो सब पे एक एनवायरनमेंट के जो मतलब इम्पोर्टेंस है, एनवायरमेंटल ऑफिसर्स को या फिर पोस्ट हो, सारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिक्रूट कर रहे हैं। अभी देखा कुछ देर पहले राजस्थान का हुआ, उसके पहले प्रदेश यस यस। का एक हुआ था। हाँ, तो हर एक का हो रहा है, यू नो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिक्रूटमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर है कि भाई करना है आपको। यस यस। तो और जैसे कि दिवाकर ने भी कहा कि एवरी डिपार्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड दे आर अंडर स्टाफ, तो वहां पे रिक्रूटमेंट तो चाहिए। तो ये डेफिनेटली, तो मैं इसलिए ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपको अच्छा लगता है एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के सिवा दूसरे चीज को फर्स्ट प्रेफरेंस मत रखना। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से, आई गेस, राइट दिवाकर? यस हाँ, यस यस। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है कोई। लेकिन कई सारे लोगों को मैं ये देखा हूं हु लव्स टू स्टडी एनवायरनमेंट, बट दे आर नॉट स्टडीइंग दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो कहीं से सुने हैं कि जॉब सिर्फ स्ट्रक्चर में लगते हैं। ये गलत नहीं फहमी। नहीं नहीं। नहीं हाँ नहीं, गलत नहीं है, वो पुराना हो चुका है, पहले की बात हाँ सही है, ऐसा हाँ, मान सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली, या दैट्स द थिंग आई वांटेड टू से। या एनीबॉडी हैविंग एनी स्लाइट क्वेश्चंस, वो मुझे पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस, जस्ट रेज योर हैंड और जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस। मोटा मोटी आपका जो जो क्वेश्चन मेरे पास मैसेज में आया था, मैं दिवाकर से पूछा हूँ, ये सब आप ही का क्वेश्चन है, मेरा खुद का सवाल नहीं था। Anybody having any other questions? Otherwise, I will end the session. Regarding environment, regarding PhD, regarding higher studies के scopes, आज के सेशन का मेन टॉपिक यही था। Since yeah, anyone? कालिम, सुमित, हेलो सर। हेलो प्रथमेश, सर। प्रथमेश, हाँ बोलो प्रथमेश। प्रथमेश एक बार आप कैमरा ऑन कर लो। यस सर। अच्छा ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है, चलो फाइन फाइन, कोई दिक्कत नहीं ठीक। है, आप पूछ सकते हो। हाँ पूछो पूछो यस प्रथमेश। सर। सर मैंने पीएमआरएफ रिलेटेड कुछ चीजें सर्च की थी गूगल अच्छा। पर।
आपसे बात ठीक है। होने के बाद ही। हाँ। तो वहाँ मेंशन था कि अगर एमटेक परस्यू कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या एमटेक होने के नहीं बाद। नहीं नहीं तो नहीं मुझे नहीं कॉल आया एम है। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, मुझे आरए कैटेगरी में कॉल आया है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईआईटी बॉम्बे से। तो ओके। मतलब, हाँ, तो प्रोसेस मतलब कर सकते हैं एमटेक परस्यू करते टाइम, या फिर कैसा होगा प्रोसेस? नहीं नहीं, उसके लिए ना पहला ही कंडीशन है पीएमआरएफ का कि आप एज ए पीएचडी कैंडिडेट रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है। तो आरए आपको जो आया है, आपने मास्टर्स नहीं किया है ना अभी? नहीं नहीं, ये नहीं बीटेक है। नहीं, मैंने। हाँ नहीं नहीं, तो मास्टर्स तो एक एमटेक कैटेगरी का भी आरए हो सकता है। उसके लिए फर्स्ट ही कंडीशन है कि आपको एक एक्टिव पीएचडी स्टूडेंट होना चाहिए, जिसमें पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी में। पहला कंडीशन यही है। तो आप मास्टर्स के साथ जब पीएचडी में अब कन्वर्ट हो या एडमिशन लेते हो, तभी आप पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ। मतलब जैसे प्रथमेश, आप जैसे आरए में जा रहे हैं तो मतलब बेसिकली आप एमएस कैटेगरी में जा रहे हैं, या फिर हाँ हाँ, एमटेक यस आरए यस, भी होता है। उसके बाद हाँ। हाँ एमटेक की तो डिग्री उस मिल जाएगी। हाँ, तो मास्टर्स का आपका जो डिग्री मिलेगा उसके बाद आप अप्लाई कर हम्म। सकते हो। ये सुमित हैज एनी क्वेश्चन? सर, नहीं, आईआईटी बॉम्बे के फॉर्म में जियोटेक ऊपर रखा है और एनवायरनमेंट नीचे रखा है, तो क्या काउंसलिंग, क्या बोल रहे हो, काउंसलिंग के टाइम प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? नहीं, नहीं 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 कर सकते, नहीं। ये अभी तक नहीं, तो जो हो आपको चुका है वही। अगर इन्वायरमेंट जाना है अनिरुद्ध, मैं क्लियरिफाई करूंगा कि अगर आपको हाँ इन्वायरमेंट का कॉल पहले आ जाता है, तो आप उसमें तो हाँ शायद अभी कोप पे होता है ना, आप वहां पे हाँ हाँ, एक्सेप्ट और फ्रीज कर एग्जिट हो लीजिए। जाओ वहां से, अपग्रेड होगा हाँ, ही नहीं। लेकिन अगर वो पहले तो है। आपको जियो टेक का आ गया, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो आप। हाँ, वही वही चीज है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी रिगार्डिंग एनवायरमेंट, रिगार्डिंग हायर स्टडीज? जो भी आप लोगों का सवाल था मेरे पास मैसेज में, वो मैंने दिवाकर से पूछा। अगर इनके सिवा भी और कोई क्वेश्चन है आपका, तो यू मे आस्क। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क प्लीज, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन ओवर हियर। सर, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? दिवाकर, एमटेक इंटरव्यू। अनिरुद्ध, फर्स्ट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यू तो तुमने भी दिया है। Yeah, so yes, फिर I मैं have आंसर actually, करूँ। yes, I have answered a little bit, but actually शायद आपसे सुनना चाह रहे थे लोग, but still I'm answering this. The thing हाँ। is, देखो, मेनली ऑब्वियसली गेट के जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस हम्म करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कहीं नहीं। बट एक चीज हम्म जो मैं भी अपने सजेस्ट करूंगा कि अपने बीटेक के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ऑल्सो सम बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन, मेरे को एटलीस्ट नहीं पूछा गया था। बेसिक Like मैथ्स, बेसिक मैथ्स। basic math actually, right? Yeah, that हाँ was being asked actually. Basic math, and हाँ। also like the questions which are related to environment. मैं ये भी चीज बता रहा था, since मैं environmental engineering से हूँ। जैसे सुमित कह रहे हैं कि इनका बीटेक प्रोजेक्ट सीवेज ट्रीटमेंट में था, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हाँ, अच्छी बात है कि आप अच्छा। एनवायरमेंट के रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो यू कैन हाँ, एक्चुअली शोकेस दैट पर्टिकुलर थिंग टू द इंटरव्यू पैनल कि हाँ, मैं अपने बीटेक प्रोजेक्ट एनवायरमेंट में ही किया था, टू शो हम्म, दैट आई एम मोर इंटरेस्टेड टू वर्ड। सिंपल सी बात है, आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है उनके तरफ कि हाँ भाई, मैं इस ब्रांच की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। आप एक और काम कर सकते हो जो मैं इससे पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ, कि इस पर्टिकुलर आईआईटी, मतलब जिस जिस आईआईटी में आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, उस आईआईटी में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन कौन से रिसर्च हो रहा है करंटली, आप उसको एक बार देख लो। तो उससे एक अच्छा चीजें होता है एक्चुअली। एक इंप्रेशन बढ़ता है कि आप मतलब बोल सकते हो कि हाँ, ये फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, जिस पे काम हो रहा है। तो इट फील्स गुड एक्चुअली फ्रॉम दैट पर्सन ऑल्सो, कि दैट पर्सन ऑल्सो फील्स दैट दैट गाय इज इंटरेस्टेड टू जॉइन अस। तो एक हम्म, अच्छा एक इम्प्रेशन होता है। मतलब जबरदस्ती करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ यार, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें। वो तो मतलब फिर वो समझ जाएंगे क्योंकि वो फैकल्टी है। अच्छा, उमंग का क्वेश्चन है, सर दिस इज बिलीव कि पीएचडी के बाद तो बस टीचिंग लाइन है, तो नहीं वो भी एनवायरमेंट।
हाँ दिवाकर नहीं, इस बारे में कुछ अगर हाँ, आप बोलो इस तो। इस बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, टीचिंग लाइन वो अभी तक था, मतलब वो भी सही है। अब जैसे मैंने बताया ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे आप, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो पहली तो टीचिंग है जो लोग प्रेफर भी करते हैं। हाँ हाँ दूसरी है कि अभी हमारा प्लेसमेंट सेल पीएचडी का भी बन चुका है और लोग प्लेस्ड भी हो रहे हैं सारे आर&डी सेक्टर में जो भी है अभी। अभी क्या है, इंडिया में हमें जो भी कंपनीज हैं अब इन्वेस्ट कर रही है आर&डी में। पहले वो सेक्टर लैग कर रहा था, लोगों को चाहिए कि हम नई नई चीजें यहाँ पे खोजें। और दूसरी चीज है कि आप फिर इसके बाद एक आर&डी सेक्टर प्राइवेट जॉब में जा सकते हो। और मैं यहाँ जहाँ बोल रहा हूँ, अगर थर्ड ऑप्शन अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं प्राइवेट, वो भी हायरिंग हो रही है, और वो भी अच्छे पैकेज के साथ। बहुत अच्छे पैकेज के साथ इनफैक्ट यार, हम्म, मतलब हम्म, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छे पैकेज के साथ ये जा रहे हैं लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सो दैट इज हाँ पूछो। डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स। या यस, सर कोई मेरा एक सवाल क्वेश्चन है। पूछना चाह रहे थे? या कालिम, हाँ बोलो। सर मेरा 13th एंड 14th को इंटरव्यू है आईआईटी बॉम्बे में इन्वायरमेंटल का। हम्म, बट ओके, मेरा कॉलेज के में एग्जाम है 13th को, तो मैं 14 को दे सकता हूँ क्या इंटरव्यू? हाँ, आप उनको इन्फॉर्म कर दोगे थ्रू मेल और कॉल, तो आपको शेड्यूल कर सकते हैं कि सर मेरा एग्जाम है, क्या मैं 14 को दे सकता हूँ, तो आप और उनको कोई पहले मैसेज और कन्वे कोई करना। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अटैच कर देना कि आपका हाँ हाँ, यस 13 सर, को ओके एग्जाम सर। है इसका। सर मैंने दो हो जाएगा दो वो, मेल हो किया है जाएगा। उनको, बट उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। आप आप अटैच आप किए थे उनका देखो, डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट भी अटैच किया था सर। आप उनको मेल आईडी कुछ शेयर कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ आईआईटी बॉम्बे आप इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग नहीं, डिपार्टमेंट का? अरे वेबसाइट खोलोगे वहां पे ऑफिस का ईमेल आईडी और फोन दोनों है, आप कॉल भी कर सकते हो एक बार अपना नाम यस बता यस के। यस सर। हाँ ठीक कॉल है ना, कर। मैंने किया और था, बस आपने, अभी तो कॉल लग नहीं रहा है वैसे। मैंने लेकिन कल नहीं सुबह अभी ट्राई नहीं कोई करूंगा करेगा शायद। ना, आपको ऑफिस आवर में करना पड़ेगा, मंडे टू ओके ओके फ्राइडे आपको करना पड़ेगा 10 से लेके 5 के बीच में। और वो भी 1 से 2 के बीच में कोई नहीं उठाएगा, लंच आवर्स होता है। ओके सर। मुझे यही पूछना था कि 14 को हो सकता है कि नहीं शेड्यूल, हो इसलिए नहीं, मैं। हो हो जाएगा। जाएगा आप मेल बिल्कुल। मेल लिखोगे, ओके सपोर्टिंग सर ओके। डॉक्यूमेंट अटैच करो, वो अलाउ कर देंगे। ओके सर। या ओके सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन था, आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी मद्रास में सर डायरेक्ट एडमिशन या उसमें भी इंटरव्यू होता है? मुझे आइडिया नहीं है आईटी मद्रास का, हाँ आईटी मैं बॉम्बे बोल में देता तो हूँ। इंटरव्यू। हाँ हाँ, सर मद्रास में जो है पिछले बार जैसे कि इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। ओके, लास्ट टाइम का अगर बात करूं, क्योंकि हर बार अलग अलग आईआईटीज में कुछ कुछ, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे का ही अगर मैं बताऊं, एक साल इंटरव्यू हुआ, एक साल इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर इस साल हो रहा है इंटरव्यू। तो ये हर अलग अलग साल में डिपेंड करता है कितने बच्चे उस ब्रांच में अप्लाई कर चुके, इसके बेसिस में वो ये चीज डिसाइड होता है। सो वो आपको पता चल ही जाएगा, ग्रुप पे तो आप लोग हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सर 690 गेट स्कोर पे कोई चांसेस है आईआईटी बॉम्बे का इन्वायरमेंटल? आपका हाँ स्कोर एकदम कैटेगरी के चांसेस पर। है। तुम नहीं नहीं। इसीलिए तो जहां जहां इंटरव्यूज है ना, वहां पे हाँ पूरे हाई ओके चांसेस सर। हैं। वो ओके सर, डिपेंड करता है थैंक यू तुम सर। अपना इंटरव्यू कैसे देते हो। हाँ, ओके सर। ये तो है, हाँ, डेफिनेटली वेटेज इसका। यस, ये सर मेरा बीटेक प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर में है, बट फिर तो उसमें कोई कोई फर्क नहीं प्रॉब्लम तो नहीं पड़ता होगा? है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमको, वहां पे तुमको इन्वायरमेंट है, बताना नहीं वो बेसिक चीज। मैथ, हाँ बेसिक मैथ्स ओके आना सर, चाहिए ठीक है, तुमको। बिल्कुल। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के जाना तुम, ओपन चैनल हाँ फ्लो पढ़ के जाना तुम, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो पढ़ के ही जाना। ये 4 एकदम चीजें। हाँ। ये सर मैं क्वेश्चन कर सही। लूंगा, उसका मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मुझे बस ये है कि वो उस बेसिस पे तो नहीं करेंगे ना कि आपने नहीं नहीं नहीं, कोई प्रोजेक्ट दिक्कत नहीं नहीं किया है। और। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, ओके ऐसे सर। उनसे मतलब नहीं है, उनको सब पता है, ओके सर। उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, एकदम। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा, बीरेंद्र सिंह बीटेक प्रोजेक्ट अगर स्ट्रक्चर में, अच्छा हाँ, वही चीज भी हाँ। हम्म, नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है वीरेंद्र, बट द हाँ पॉइंट इज दैट कि अगर आपका प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में है तो इस चीज को आप बता सकते हो, वरना मत बताओ। हाँ, सिंपल। कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ सर मेरा एक डाउट। हाँ बोलो प्लीज। सर आई गॉट MS research interview call from IISc Bangalore या ओके, in civil engineering. So how will be the interview, the process? I'm having little doubts. yes, I will answer to this particular thing later, Sesheti, right? So I will answer to this particular Yes question sir, later yes sir. actually over here. Yeah, don't worry, I will answer Okay to you sir, this personally. Okay. सर okay फॉर sir, thank you. पीएचडी के लिए सर ने बताया कि कितनी अपॉर्चुनिटी फॉर एनवायरमेंट, सेकंड प्रेफरेंस इज एनवायरमेंट, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी अपॉर्चुनिटीज है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी। देखो ये एनवायरमेंट फील्ड में है तो फिर एनवायरमेंट फील्ड के बारे में इसीलिए सबसे ज्यादा ये बताएंगे। बट ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी ग्रोइंग फील्ड, और ट्रांसपोर्टेशन की एक खासियत ये है, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ आपको,
कि ट्रांसपोर्टेशन का खासियत ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी वैरिड फील्ड। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स है, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, तो फिर चूज करने के लिए बहुत सारे चीजें। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी ग्रोइंग ट्रेंडिंग थिंग, एक्चुअली आई विल से ट्रेंडिंग टॉपिक में से, जस्ट लाइक एनवायरमेंट। गोपेश इज सेइंग वाटर रिसोर्स का स्कोप, वाटर रिसोर्स में कोर जो पैकेज लगता है दैट इज इन बिटवीन 5 to 7 LPA, हाईएस्ट एक को लगा था 9 LPA। जो लोग बात नहीं कर रहे वो प्लीज, या सवाल नहीं पूछ रहे, अपने माइक को ऑफ रखेंगे प्लीज। उनको सवाल नहीं पूछना है, प्लीज अपने माइक को ऑफ रखना, राइट। एंड नॉन कोर जो पैकेजेस है, नॉन कोर जो जॉब जिनके लिए IIT बॉम्बे सबसे मशहूर है, उनके लिए तो सारे डिपार्टमेंट सेम है, उनके लिए यस, मैटर नहीं उनके लिए करता। आईटी बॉम्बे के लिए मैटर नहीं करता है कि एग्जैक्टली आप उनके नॉन लिए कोर जॉब के लिए आप किस डिपार्टमेंट से हो। किस डिपार्टमेंट से है, कि आप एनर्जी साइंस से है, कि आप सितारा से है, कि आप हाँ, सेक्टर यस, से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोडिंग आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। आप जाओ वहां पे, AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग, ये सब चीजें आनी चाहिए। उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, यही बस होना चाहिए। बस वो ब्रांच बस नहीं देखते दैट्स हैं। ऑल। हाँ, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है ये सब चीजें, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो। यस, एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट 3 minutes वी आर हैविंग। बाकी इनको मैं सर फिर एक से एक और बार क्वेश्चन था, बुलाऊंगा। IIT कानपुर में स्ट्रक्चर का कॉल्स जो है, तो सर कितने स्कोर तक आप कर सकते हैं रिलाई कि इतने स्कोर है स्ट्रक्चर में आपका? सिविल इंजीनियरिंग में तो आप स्ट्रक्चर के लिए जाए रिटर्न टेस्ट के लिए, और वहां पे चांसेस ज्यादा आपके। कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल जनरल। जनरल कैटेगरी तो है तो मैं आप 560 to 600 तक में आप जा सकते हो, 600 के नीचे नीचे तक अगर आपका है तो, ठीक है, आप जा सकते हो। ओके सर। ओके, ओके। और सर हाँ, EWS के लिए सर? वही 550 के आसपास, 540 550 के आसपास आसपास में, पिछले बार के ट्रेंड के हिसाब से बोल रहा सर हूँ। अच्छा, सर मेरा 532 है, तो सर जाना चाहिए। जा 532 है। सकते हो सकता है आपका, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखे थे सिविल, हाँ स्ट्रक्चर, सर। सॉरी, हाँ सर। स्ट्रक्चर आपका, हाँ तो जा सकते हो सकता है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, रिटन टेस्ट अच्छा हो गया तो। हाँ, अच्छा उमा, अनिरुद्ध, मैं यही बोलूंगा, अनिरुद्ध में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। हाँ अगर हाँ हाँ आपको हाँ, कॉल आया है रिटन टेस्ट के लिए, तो आपका हम्म, कितना भी लो गेट स्कोर है, उससे मत सोचिए, आप जाइए। बिल्कुल अगर इंटरव्यू के बिल्कुल लिए बिल्कुल कॉल आया है, कि वहां पे ही बिल्कुल डिसाइड हो बिल्कुल, हाँ जाएगा। हाँ, यस। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हाँ, हूँ दिवाकर के साथ, कि आधा से ज्यादा लोग यही सोच के नहीं जाते, तो वहीं पे आपका हाँ, कट नहीं जाते हो हैं। जाता है हाँ, यस यस। एक्चुअली। तो अगर या आपको सो, रिटन टेस्ट इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, तो जरूर जाइए। हाँ, उमंग इज सेइंग सर PhD के बाद टीचिंग लाइन में क्या स्कोप है, क्योंकि मुझे बस अनिरुद्ध सर को भी टीचिंग एक्सपीरियंस, तो यही पूछना था कि MTech PhD के बाद क्या पैकेज मिल सकता है। वहां पे देखिए, अगर आप कमर्शियल टीचिंग में जाते हैं मेरी तरह, तो वहां पे स्काई इज द लिमिट। ठीक है, लेकिन आप अगर आप नॉर्मल टीचिंग में भी जाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट यही में, है। कोई हाँ, जैसे मतलब कोई कॉलेज में भी, वहां पे भी बहुत अच्छा खासा 12 13 लाख 15 लाख का पैकेज मिलता है, विच इज वेरी हैंडसम हाँ, पैकेज। स्टार्टिंग पैकेज इज अनिरुद्ध फ्रॉम 12 to 15, 12 इवन to 15 इन प्राइवेट कॉलेज, इवन प्राइवेट इन कॉलेजेस ऑल्सो। NITs एंड ऑल दोस थिंग। यस यस। तो यस उसमें यस, है कि वहाँ लोग जाते हैं, फिर उनका है कि उनको प्रोफेशन मतलब पढ़ाना अच्छा लगता है, मतलब उस फील्ड में उनको काम करना है, एक हॉबी है। या यस ऑब्वियसली। ठीक है, अभी इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस अपना तैयार करके रखिए, बाकी जिनका अलग से क्वेश्चन है वो मुझसे अलग से पूछ लीजिए, ठीक है। और टाइम पे ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। मैं 7 बजे ये सेशन बोला था, फिर भी आधा घंटा लेट आया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आया करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। एंड आप मेरे को सवाल डायरेक्टली पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, रजत।